बिल्कुल सर, अब सुबह सुबह ने यहाँ पर ये बढ़िया, बहुत बढ़िया हौसला दिए, मुझे भी बड़ा खुशी लगा। तेजस ने बिल्कुल वो क्लिप मुझे दे निकाल के, मैंने भी स्टेटस में रखा हूँ। सिद्दीक सर, थैंक्स है आपको निश्चित रूप से। So back to cricket now. Remind you, Suresh Pai won the toss, and I think sensible decision. They know because Ganesh Kukse, one of the big name, they elected bat first. To openers, Paresh Goratkar, the captain with Karan Patil, सलमान अंसारी दी 12th मैन। सुरेश इंटरप्राइजेस इस बात का ध्यान रखे, गेंद अगर गिर गई तो 2 रन का पेनल्टी हो जाएगा। आपका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी है। तो चलिए, बड़ा मैच निश्चित रूप से बात करेंगे सिद्दीक सर। जब सेकेंड राउंड का मैच आता है ना, तो यहाँ से अब अंदाजा हम लगा सकते हैं कि दोनों टीम एक एक मुकाबला जीत कर आए हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। और ये क्रिकेट एक वक्त, एक दिन, एक समय रहता है, और खिलाड़ी का क्लास, फॉर्म, ये सब आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन आज के वक्त में बात करेंगे, धनेश कुक से टीम में देखिए बहुत क्लासिक खिलाड़ी हैं, लेकिन सामने वाली टीम भी देखिए टॉस जीतने के साथ देखिए पहले बल्लेबाजी लिए। मैं यहाँ इनकी सोच के दाग देना चाहूंगा। देखिए, सामने जब एक मजबूत टीम के सामने जा रहे तो फिर पहले बल्लेबाजी कर ले तो बेहतर है। Yes, no doubt at all. Suresh Pai also one of the strong side. Back to cricket, let's play. Game on. Jay Ture open the bowling attack, facing him Paresh Goratkar, the captain of Suresh Pai. For Goratkar, short thurman, deep pitch gully, cover point, short backward square leg, man at wideish long off, unusual position. Jay Ture, left arm over the wicket, facing him Paresh Goratkar. Goes to Paresh, punch as ball beautifully. Ball is traveling to deep cover. Good cut off inside the boundary line. But ball is cross the fence for 4. Great start from captain. अब बढ़िया बढ़िया शुरुआत देखिए, टॉस जीतते हैं जब और बल्लेबाजी लेते हैं तो फिर रन आना जरूरी है। और सिद्दीक सर, हम हमेशा कहते हैं दिल की बातें दिल ही खूब जानता है, और मैंडेटरी पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए हमसे बेहतर दोनों सलामी बल्लेबाज जानते होंगे। Jay Ture. This time try to reverse shot, be seam outside the off stump. Not a necessary, because in first ball punch very hard and then he tried to on orthodox cricket. Dot ball, 4 without loss. Jay Ture, left arm over the wicket, facing him batsman Paresh Goratkar. Goes to Paresh, not a very good stroke, but they threw for a quick single. 1-2 total now. Paresh moves up to 5, and his score is Suresh Enterprises by 5 without loss. Now informed batsman Karan Patil on his strike. He is also key player. Jay Ture. Goes to Karan, pulls it in the vacant area. Ball is racing all the way to the mid wicket fence for 4. Is 9, Karan off the mark with fantastic fashion with a boundary. 9 without loss. This is the positive start from Suresh Enterprises Pai. Jay Ture. Ball this time, balloon in the air, could be caught. Yes, no mistake made by Kumar Gun, and finally first wicket has fallen.
Not a very good stroke, Babu Shah. He tried to play on the rise, balloon in the air. No mistake made by Kumar Gun. और बिल्कुल से आप बात करेंगे ना सिद्दीक सर, एक दो चौके दागने से बड़े खिलाड़ी नहीं कहा जाएगा। जिस तरह के यहाँ पर ये मैच देखिए बड़ा है। पिछले मैच देखिए बात करेंगे धनेश टीम ने 96 रनों की टारगेट रखे थे और सुरेश नेरपाल ने बात करेंगे 81 रनों की टारगेट रखे थे। यानी दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने दिखाए हैं कि हमारे पास है दम, लेकिन ये मैच बहुत बड़ा है। लेकिन सिद्दीक सर मैं हमेशा कहता हूँ बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई रोहित मैन नहीं बनता। हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स भी खेलना पड़ता है। वाह बाबू शाह। Jay Ture, left arm over the wicket. This time try to uppercut, beat him outside of his stump. Extra bounce and extra pace maintained by Jay Ture. That marks an excellent over. Turn from Jay Ture, consider 9 run and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी देखिए, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। देखिए 2 चौके खाए थे, लेकिन से यहाँ पर थोड़ी सी नाखुश रहेंगे। टॉस जीते थे, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी लिए थे। अगर शुरुआत में कुछ रन आ जाता, जैसे सिद्दीक सर कहते हैं ना, जंगल में जब शेर शिकार करता है ना, पहले खूब खाता है, जमकर खाता है, उसके बाद बाकी के लोगों को खाने को मिलता है। तो उसी तरह से जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ रन बनाकर चले जाते हैं ना, देखिए क्रिकेट में हर कोई शेर है, लेकिन जो शुरुआत अगर अच्छा कुछ रन आ जाए ना, फिर निचले क्रम के बल्लेबाज को क्या वो लाइसेंस मिला रहता है और एक आध चौके छक्के जोड़ कर एक अच्छा टोटल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साझेदारी तोड़ने में कामयाब होते हुए गेंदबाजी के लिए प्रिंस ऑफ भिवंडी खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार। देखिए इस खिलाड़ी ने बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर इंस्टाग्राम पर भी देखिए इनकी फॉलोअर्स जाकर बढ़िया बढ़िया काम है। मैं तो कहता हूँ ये अगर बॉलीवुड में होते तो फिर शाहिद कपूर भी इनसे पीछे रह जाते। बिल्कुल, लेकिन आजकल थोड़ा हेयर स्टाइल उनका कम हो गया है। विवेक शेलार, इनके पास जो कटर गेंद है उससे इन्होंने सिटी क्रिकेट, पीटीसी क्रिकेट, ओपन क्रिकेट में काफी परेशान किया बल्लेबाजों को। इस मरतबा फुल टॉस गेंद पीछे निकल गई है। देखना अंपायर का क्या इशारा है, अंपायर का क्या इशारा है। चार रन, बल्ले को टकराने भर के बाद गेंद गई थी। इस चौकी की मदद से स्कोर 13 पे वाइड का अब इशारा है। 5 रन आ गए हैं स्कोर में और 14 रन हो चुके। ज्यादा तेज करने में कहीं ना कहीं अपनी दिशा पे कंट्रोल नहीं रख पाए थे। बिल्कुल सिद्दीक सर, आपने कभी कभी स्टेशन में सुनते होंगे ऐसा कि एक जलद गति की गाड़ी आ रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, कृपया करके थोड़ा दूर हट जाइए। ये जलद गति के गेंदबाज है निश्चित रूप से, जिनका सामना करना जितना आसान भी है और उतना मुश्किल भी है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, स्क्वायर लेग को सीधा किया है, लगभग मिड विकेट पे बुलाया है विवेक शेलार। ओ यॉक कराने की कोशिश, लेकिन क्या बढ़िया ड्राइव। 2 रन बनाए बैट्समैन ने, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पैरों पे उछलते हुए खेला बैट्समैन ऋतिक ने। ऋतिक का 2 से खाता खुला। कुल स्कोर 16 रन 1 विकेट। मुकाबला चलता हुआ धनेश बनाम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। धनेश कुक से अच्छा शॉट था, बिल्कुल बैकलीफ को नीचा करके इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला था। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, 6 रन। वार भी किस पे किया, मजबूत कड़ी पे। वो जो कहते हैं कि मजबूत कड़ी पे आप वार करो तो बाकी की कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है और लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। बिल्कुल, अब विवेक सेलर के ऊपर देखिए हमला किया जा रहा है और एक बार उड़ाया, वाह रे वाह, AK-47 रन।
वही बल्लेबाजी कर रहे हैं जो उन्होंने ग्रामीण से खेलते हुए मापुर चषक में की थी गुरसई बी के सामने। इस वक्त स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28 रन और खतरे की घंटी अब बजा दी है। बिल्कुल सिद्दीक भावी सर यही बात कर रहा था कि सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। और विवेक सलेर देखिए इनके पर हमला कर रहे हैं और AK-47 का इस्तेमाल किया जहां पर यानी AK-47 में कहा जाए ना बहुत सारा गोलियां रहती हैं। तो देखते हैं कितना गोलियां और इस बल्ले में है। आने वाला वक्त समय तो बताएगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 28 रन। फिर से एक बार विवेक शेलार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा ऊपर लगी है, किस्मत का सहारा, 4 रनों के लिए बार। बढ़िया चौका आता हुआ। जैसे कहते हैं ना इंसान को जिंदगी में कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो उसी तरह के बल्ले का देखिए ऊपरी किनारा लिया और चौका आता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया पर 32 रन। 32 रन। हमारी आवाज थोड़ी फट रही है यूट्यूब पे। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, ऑफ कटर किया था वहां पर, बीट किया बैट्समैन ऋतिक को, लेकिन ऋतिक लगातार आक्रमण कर रहे हैं और कामयाब भी हुए। सिद्दीक सर कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो नहीं फिर फंफा। तो विवेक सेलेर के ऊपर देखिए बहुत बढ़िया और एक गेंद स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी शकर की गोली दी और बैट्समैन आउट। मिड विकेट पे कोई गलती नहीं की पीछे खड़े खिलाड़ी ने। एक पहला दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर सुरेश पाए को। स्कोर इस वक्त 32 रन 2 विकेट। दो ओवर की समाप्ति, 32 रन, मरता क्या ना करता। बहुत महंगा हो रहा था। विवेक शेलार का 23 रन दे डाले। भावेश पवार को मोर्चे पे लगाया जा रहा है क्योंकि भावेश पवार को भी पता है कि स्कोर अगर 70 के ऊपर गया तो सुरेश पाए के पास भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की खेप है। भावेश पवार, नए बैट्समैन करण कदम, पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और कुल मिलाकर 40 रन बनाए थे सोना देवी के सामने। भावेश पवार, नए बैट्समैन, परेश गोराटकर, टीम के कैप्टन भावेश पवार। इस मरतबा स्लाइस किया, पीछे खिलाड़ी रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन आता हुआ स्कोर में। भावेश पवार पिंपलास एंड से गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे बैट्समैन करण कदम। ऊपर भेजा है, सूरज पाटिल का आना बाकी है, उमेश तरे का आना बाकी है। भावेश की गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए बल्लेबाज ने गेंद को आखिरी समय तक यहाँ पर रखे थे और बढ़िया देखिए यहाँ पर सफल बनकर यहाँ पर पॉइंट के फील्डर देखिए विवेक थे, उन्हें बीट किया और बढ़िया देखिए यहाँ पर आउटफील्ड कितना तेज और चौका आता हुआ। इस तरह के एक एक रनों बड़ा अहमियत रखेगा आपका अच्छा टोटल तक पहुंचने के लिए। भावेश पवार इस मरतबा बढ़िया कवर ड्राइव फुल पे लेकर, गति परिवर्तन था, डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद पहुंची, दूसरे के लिए
जाना चाहते थे, गोड़ाटकर मना किया। 1 रन से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 38 पे पहुंचा है। खतरे की घंटी अब बजती हुई धनेश कुकसे के लिए। भावेश पवार सामना करेंगे गोड़ाटकर। इस मरतबा आसमान में तान दिया है, नीचे अभी तक 6 रन देकर 1 विकेट लिया है। नए बैट्समैन सूरज पाटिल बल्लेबाजी को आए। बाहुबली खरबाओं के बैट्समैन और अच्छे टच में इस सीजन में, लेकिन भावेश पवार ने 1 विकेट जरूर दिला दी अपने टीम के लिए। भावेश पवार सामना करेंगे करण कदम। वो उंगलियां फेरी थी, वाइड फिंगर रोल किए थे, हाथों के पीछे से बैकआर्म डिलीवरी थी, लेकिन लाइन खराब। इस मरतबा फ्लिक हवा में आउट, पैरों पे निशाना था, फिर स्ट्रोस खेला था, कोई गलती नहीं, एक और विकेट। बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। विनीत माली ने, सागर कारबारी, विनीत माली ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, शॉर्ट मिड विकेट पे पैरों में गेंद रखी थी, हालांकि हैट्रिक पे तो नहीं है, बीच में वाइड गेंद कर बैठे भावेश पवार। भावेश 2 विकेट चटका कर बता दिया है कि वह हरफन मौला खिलाड़ी क्यों है। इस मरतबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन रन पूरा करते हुए बैट्समैन। लीडिंग एज रहा था, अतिरिक्त उछालता, सीने के करीब पुल मारना चाहते थे। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन, एक अच्छा टोटल है। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पर हैं, 4 विकेटें जरूर गिरी है। 3 ओवर में और कितने होते, आइए सुनते हैं बाबू शाह से। धन्यवाद सिद्दीक सर। बिल्कुल सिद्दीक, स्थिति ऐसा है, दोनों टीम के लिए मुकाबला पूरी तरह से 50-50 अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहूंगा थोड़ा सा धनेश लेबन कुक से टीम थोड़ा आगे निकले, इसलिए क्योंकि विकेट यहाँ पर देखिए 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को आउट किए हैं। लेकिन अभी देखिए जो मैदान पर सूरज पाटिल है जो खिलाड़ी है, और उसके साथ देखिए यहाँ पर सागर कारबारी, तो इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। देखिए इंग्लैंड टीम ने जब 326 रन का टारगेट रखे थे, तभी हिंदुस्तान टीम का आधा टीम ढेर था, लेकिन इंग्लैंड को पता था कि मैदान के अंदर और एक शेर था, और एक शेर वो कोई नहीं, युवराज सिंह था। और मोहम्मद कैफ के बीच में जो साझेदारी हुआ था, वहां से देखिए युवराज सिंह का विकेट गिरने के बाद कैफ ने जहीर खान के साथ मुकाबला को जीत दिलाया था, तभी इंग्लैंड में जाकर सौरभ गांगुली ने टी शर्ट उड़ाया था। तो यहां पर देखिए वही साझेदारी का उम्मीद हो रहा है। विवेक सेलर का गेंद देखिए, गेंद का लाइन छोड़ा था, बढ़िया आसानी के साथ यहां पर देखिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन हम देख सकते हैं। अग्निमाता स्टैंडर्ड 6 रन आता हुआ, क्या बात है। टाइम बहुत पहले पढ़ लिया था बैट्समैन ने। अब हम कह सकते हैं कि सुरेश पाए की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। बढ़िया यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी में यही बात का कि जब तक ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर है ना, तब तक थोड़ा दिक्कत रहेगा गेंदबाज के लिए। और विवेक सेलर बात करेंगे, पहला ओवर भी काफी रन खर्च किए और सेकेंड ओवर लेकर आए, उनके हाथों पर गेंद दिया गया है। 23 रनों का ओवर था विवेक सेलर की बात करेंगे, और यहां से देखिए छक्का खा चुके हैं पहली गेंद के ऊपर। फिर से उड़ाया, वाह रे वाह,
इस बार देखिए जैसे बंदूक से निकलती है गोली। आप देखने वाली बात यह है कि इस सीजन का एक्सपेंसिव स्पेल अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल के कल नाम गया था, 2 ओवर में 39। विवेक शेलार अब तक 8 गेंदों में कितने रन दे चुके? 35 दे चुके हैं। रिकॉर्ड बनते ही ये टूटने के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, इसलिए कहा कि आधा टीम तो ढेर था, लेकिन इस मैदान पर देखिए 2 शेर और बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ पर देखिए बात करेंगे सागर कारबरी खास करके यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट के शहबाज शेख ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, इस कप को शुभकामनाएं दी है। अंजुमन ट्रॉफी भी दस्तक दे रही है जनवरी के बीपीएल के बाद, भिवंडी प्रीमियर लीग के बाद। बहुत शुक्रिया शहबाज शेख आपका और बहुत स्वागत है। देखिए 2 पे 2 सिक्सर। तो क्या यहाँ पर तीसरा हैट्रिक बना पाएंगे? गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो, इस बार देखिए बढ़िया गेंद, देखिए यहाँ पर यही लाइन पकड़कर गेंदबाजी करना पड़ेगा। विकेट के जड़ में देखिए गेंद रखे थे और बल्लेबाज देखिए थोड़ा सफल हुए थे, रुम बनाए थे, लेकिन 1 रन आता हुआ। ये भी अच्छी सोच है। हर गेंद के पर चौके छक्के लगाना आसान नहीं रहता है। कहते ना, मन का कोई अरमान नहीं होता, दिल का कोई मेहमान नहीं होता। 1-2 चौके छक्के लगाने से कोई सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं होता भाई। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 53 रन बनाए, 53। विवेक सेलर तैयार और स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज पाटिल। खरबाव के देखिए एक बड़े खिलाड़ी हैं, फिनिश बढ़िया करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 रन लेते हुए ये भी अच्छी सोच है। देखिए जब सागर बढ़िया काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सूरज को कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, इसके बाद भी आने वाला 2 ओवर बाकी है। बिल्कुल, सागर कारबारी रनों का कारोबार कर रहे हैं और अब तक 37 रन 10 गेंदों में दे चुके हैं विवेक शेलार। हालांकि 1 विकेट भी लिया उन्होंने। तो गेंदबाज तैयार, बढ़िया देखिए शॉट मिड ऑफ तैनात, नजरे हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर थोड़ा सा गेंद हाथ से निकला और सिंगल आता हुआ। छोटा भाई और मैक्स की तरफ से विकेट लिया तो 2000 और 1 गेंद बची है। 38 रन खर्च कर चुके हैं। हिमांशु ने कल 39 दिए थे अपने स्पेल में। बढ़िया स्लोअर गेंद था, देखिए यहाँ पर कटर गेंद जो अपने सिद्दीक सर ने जिक्र किए थे और इस्तेमाल किया यहाँ पर विवेक सेलर। देखिए उनके विकेट के लिए यहाँ पर छोटिया भाई और मैक्स भाई देखिए इनकी तरफ से 1000 था। निश्चित रूप से यहाँ पर ऊपर के आखिरी गेंद देखिए बहुत बढ़िया अच्छा रहा, लेकिन से टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 55 रन, लेकिन अभी भी 2 ओवर की कहानी है। सिद्दीक सर कहते ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही 4 ओवर में यहाँ पर 55 रन खर्च किए हैं, हो सकता है आने वाला ओवर में वापसी कर भी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जितने ज्यादा रन बनेंगे चेसिंग में उतना सरदर्द रहेगा, क्योंकि सुरेश पाए किलर स्ट्रिक टीम है और वो अभी तक BC4 के कई टूर्नामेंट, लगभग सभी टूर्नामेंट खेल चुके हैं और धनेश अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही। बिल्कुल सिद्दीक सर, लेकिन बढ़िया काम उन्होंने किया शुरुआत में। देखिए जैसे कहते ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन सिटी ओपन हाफ जब होता है ना, इसमें हर कोई मगरमच्छ रहता है, बड़ा हो या छोटा, आखिरी जोड़ी तक रन आता है। आसिफ रंगरेज स्कोरर ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। भावेश पवार, ये ओवर बहुत कीमती है, 2 अच्छे बैट्समैन है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, ओ चाबुक शॉट है, ये मैदान के बाहर जाएंगी। 6 रन खींच के मारा पवार को, पावरफुल स्ट्रोक, 6 रन। तीखे लग रहे हैं, तेवर काफी तीखे हैं। वहीं तेवर जो रितिका के देवरों ने दिखाए थे न्यूजीलैंड के सामने। बिल्कुल सिद्दीक सर, देखिए पहली गेंद के ऊपर छक्का आया यहाँ पर, लेकिन उभर के देखिए यहाँ से इस मरतबा ऊपर लगी है, क्या पहुंच पाएंगे? दूसरी कोशिश में कैच छूटा और 2 रन भी मिले। और ये चलिए क्या छोटा या मैच छोटा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर देखिए जिस बल्लेबाज ने पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा, उसके बाद देखिए एक मौका मिला था, जिसे कहते ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत देना। 63 पे पहुंचा है स्कोर, धीरे धीरे खतरे की घंटी बजती हुई। अब सागर कारबारी देखिए अभी तक बहुत बढ़िया काम करते हुए। क्या गेंद थी, बिल्कुल राइज होकर कान के पास से
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में सुनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। हमारे भी सूरज भुईड़े जिन्होंने इसी ग्राउंड पे गाउदेवी चषक दिया सिटी क्रिकेट को। स्मृता में मिस की हुक शॉट है, पीछे खिलाड़ी नहीं है, गेंद पीछे सरक रही है और ये देखिए हाँ ना चलती हुई 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर 65 इस ओवर में 2 गेंदे और इसके बाद 1 ओवर। इसका मतलब है कि नियरेस्ट 80 की तरफ देख रही है सुरेश पाए। धमाकेदार बल्लेबाजी भावेश पवार, अच्छी तेज रफ्तार की गेंद, आम गेंद थी लेकिन देखना है पहले ही वहां पर स्टंप्स बिखेर दिए थे लेग बाय। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 66 रन। क्या लगता है बाबूशाह 7 गेंदों में कितने रन बनाना चाहेंगे? अब बिल्कुल देखिए जो आपको स्टार्ट शुरुआत बहुत बढ़िया मिल चुका है और इस इनिंग को मैं कहूँगा थोड़ा लंबा भी बना लेना चाहिए और उसके साथ टोटल भी देखिए बहुत बढ़िया पहुंच जाएगा। जो मैं कहता आ रहा हूँ कि फुटबॉल में जैसे गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में देखिए एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए 6 मारना पड़ता है। लेकिन भवेश पवार का एक बढ़िया वापसी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद शायद ये ओवर में अगर एक चौका या छक्का आता है, जो पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था ना, फिर सफल ओवर कहला गया। भावेश पवार पहले ओवर में कितने दिए थे? भावेश ने 8 दिए थे। इस ओवर में अब तक वो 11 रन खर्च कर चुके। उछाल दिया है, भेज दिया पवार को तारामंडल में, 6 रन। आज सुरेश पाए वह आग उगल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुरेश की बात करेंगे। जब 4 विकेट गिर गए थे ना, उनका टीम डगआउट इंतजार कर रहा था कि क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक माँ का अधूरा सपना रहता है और बिल्कुल देखिए यहाँ पर करण अर्जुन के जैसे बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है, लेकिन अंतिम ओवर धनेश 11 कुक से टीम भूलना नहीं चाहेंगे। बिफोर टाइम तो मैं नहीं कहूंगा करण अर्जुन आ गए हैं, लेकिन आपको पता है कि दूसरी इनिंग में शहंशाह का भी आना बाकी है। बिल्कुल सर, अमरीश पुरी कोई भी बन सकता है। जिस अमरीश पुरी ने कहा था अगर करण अर्जुन आ ही गए तो बेवकूफ औरत, मरे हुए कभी जिंदे आते हैं क्या? अगर आ ही गई तो इस बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। क्या अंतिम 6 गेंद सिस्टम बंद करने की कोशिश करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी क्रिकेट को आप एनालाइज नहीं कर सकते, खासतौर से BC4 क्रिकेट हो या एक गांव एक गढ़। यहाँ पर भिवंडी के क्रिकेट की खासियत है कि यहाँ पैसों के लिए नहीं, आन बान शान के लिए क्रिकेट खेला जाता है। बिल्कुल साझेदारी देखिए कि बहुत बढ़िया बनता हुआ यहाँ पर सिद्दीक भाभी सर जरूरत था इसलिए कहा बढ़िया साझेदारी। जय और बीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी। विनीत देखिए गेंदबाजी के लिए आएंगे और टोटल की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 6 गेंद, अंतिम 6 गेंद बचा है, तो देखते हैं यहाँ पर 6 गेंद में कितना रन और जोड़ते हैं। यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर 72 रन, एक बढ़िया अच्छा यहाँ पर साझेदारी बनता हुआ। लेकिन कहते हैं ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है। दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है। मैच समाप्त नहीं होता है एक बड़ी साझेदारी से, क्योंकि मैदान के अंदर धनेश कुकसे की गेंदबाज भी अभी जिंदा है। लेकिन देखते हैं दोनों बल्लेबाज भी देखिए बड़ा अच्छा साझेदारी हो चुका है। कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। विनीत गेंदबाजी के लिए तैयार। दोनों बल्लेबाज देखिए निश्चित रूप से बाहुबली के जैसे आंखों ही आंखों में यहाँ पर रन चुराया। 1 रन आता हुआ, लेकिन से 1-1 रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा। लेकिन से जो आप 80 और 85 तक अगर पहुंचना चाहते हो तो फिर हर गेंद के ऊपर AK-47 बड़ा हथियार उठाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर ले पाएंगे ये जिम्मेदारी? स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज पाटिल देखिए अभी तक 3 गेंद के ऊपर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर कारवारी देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर 11 गेंद के ऊपर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार है।
और ये चलिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, आखिरी समय में देखिए डॉट गेंद निकलता हुआ, डगआउट से तो यही शोर शराबा होता होगा भाई, तो पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे, चौके लगा छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज्यादा। बिल्कुल, विनीत माली की जितनी सराहना की जाए कम है। कम उम्र में ये काफी तरक्की कर रहे हैं। कद छोटा है लेकिन रफ्तार क्या है उनकी, बढ़िया बढ़िया रफ्तार देखिए यहाँ पर छोटी रनअप के साथ है। ओ हो, ये चलिए भाई क्या कमाल की गेंद देखे, केले के जैसे अंदर की तरफ मुड़ता हुआ गेंद निकला और चारों खाना चीते। 2 सेट बल्लेबाज को डॉट गेंद खिलाना, मिट्टी से घी निकालना, बहुत बड़ी बात है। विवेक शेलार पीट गए, भावेश पवार को भी पीटा गया, लेकिन ये युवा गेंदबाज लगातार परेशान कर रहा है, वो भी इन फॉर्म बैट्समैन सूरज पाटिल को। बिल्कुल देखते हैं सूरज पाटिल कितना समय और रुकते हैं। कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचो डर गया, तैयार नहीं थे और बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन सिद्दीक सर कहते हैं ना धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, एक विकेट ले लेने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। बुमराह बनने के लिए गेंदबाज को करना पड़ता है लगातार गुमराह, और अभी तक देखिए इन्होंने गुमराह करके रखे हैं 3 गेंद के ऊपर, लेकिन आने वाला 3 गेंद क्या कुछ कहकर जाएगा। कहते ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। ओहो यहां पर देखिए उड़ाया है गेंद को, हवा में है गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, उई दया मार डाला रे। बहुत कम छूटे, मौका भी दिया, मेरे ख्याल से गेंद पहले ही बाउंड्री के पीछे थी, लेकिन सर के ऊपर से जरूर मस्तक पे दस्तक, 6 रन। सिद्दीक सर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ऐसे छक्काओं का जाता है, ऊपर से ज्यादा जाता है, लंबाई कम लेता है, इसलिए तो कहते हैं किसी की शकल को देखकर किसी की ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल भी क्रिस गेल का बहुत बेकार था, लेकिन कितना खतरनाक। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ऐसा होते हैं ना, वाइड गेंद भी नहीं देखते हैं, उसके ऊपर भी चौका छक्का प्रहार करते हैं, इसलिए तो 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। और बढ़िया देखिए यहाँ पर, इसलिए बात कर रहा था कि शेर 2 कदम पीछे गया, लेकिन जब से आईपीएल में आए वेस्ट इंडीज वाले क्रिकेट ही भूल गए, देश का क्रिकेट 0 हो गया है उनके। नहीं उनके शेर सिद्दीक सर वो बात भी सही है, लेकिन वही टीम है, आईपीएल खेल रहे हैं काफी सालों से, लेकिन थोड़ा बुढ़े हो चुके हैं खिलाड़ी, बहुत फिटनेस काफी कुछ मायना रखता है। देखिए क्रिस गेल से हम लंबा इनिंग्स नहीं देख पा रहे हैं, डीजे ब्रावो को देखा वो गेंदबाजी नहीं दिखाई दिया, तो थार नहीं। आईपीएल से खेल निखरते हैं खिलाड़ी। It has been a wonderful fast bowling from young विनीत माली। देखिए विनीत माली, सौरभ माली, खास तौर से ये जो 2 युवा हैं, सौरभ माली इस सीजन में सिक्सर का पहला हैट्रिक उन्होंने लगाया है, वो भी मानकोली को बिलोंग करते हैं। तो चलिए कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट छक्का लगाना, फिर टोटल जाकर शायद यहाँ पर देखिए 80 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा एक टोटल सेट कर पाए हैं। और दूसरा रन क्या यहाँ से कंप्लीट होता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए अंपायर की तरफ से सर भावेश पवार देखिए यहाँ पर बता रहे हैं तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वी हैवंट द फैसिलिटीज ऑफ थर्ड आई। 79 रन बनाए, और उसके साथ बात करेंगे अभी जो ये 2 रनों की चल रही है। प्लीज धनेश, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, प्लीज। अगर ये 2 रन छूट जाए तो फिर 81 हम बात कर रहे थे कि 80 तक पहुंच पाएंगे या नहीं, और ये देखिए 2 रन यहाँ पर अंपायर का डिसीजन आया, नट आउट निश्चित रूप से। तो धनेश टीम के खिलाड़ी आइए, गेंद आपको बल्लेबाजी के लिए देखिए 81 रन बनाए जीत के लिए, 82 रनों का एक बड़ा टारगेट कहा जाएगा। देखिए कमेंट्री बॉक्स पर चाय आता हुआ, और ओमकार जी सेट्टी देखिए जुड़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर धनेश लिबर टीम के खिलाड़ी आइए, यहाँ पर बॉल चेक कर जाइए। बाबूशाह चाय पीजिए, अभी आपने कहा था ये बड़े कप में आई है, अभी आपने कहा था चाय पिला रहे हैं या फिर पोलियो का डोज पिला रहे हैं। चलिए चाय का कप की साइज में बताया था सिद्दीक सर, क्योंकि चाय तो दिल खोल के आयोजक पिलाते हैं कितनी कप पीजिए, लेकिन ये जो चाय का कप का साइज ऐसा बना है ना, ऐसा लग रहा है पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। लेकिन इस कंपनी वाले ने देखिए हर चीज कटौती करते जा रहे हैं। देश बचाओ, क्या इस तरह से देश बचेगा?
सिद्दीक सर देखिए मुस्कुराते हुए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं और हमारे बीच स्कोरिंग दुनिया का बड़ा नाम अल्पेश गायकवाड आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम। आजकल बहुत बिजी हैं। बढ़िया, अच्छे हमारे दोस्त भी हैं निश्चित रूप से। डंबोली में भी जाकर कल्याण में भी लीजिए, सिद्दीक सर बढ़िया यहाँ पर स्कोरिंग के काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश करना होगा। बाबू उषा, ये बताइए कि क्या टोटल रखा है धनेश के सामने? 81 रन बनने के साथ 82 रनों का ये टारगेट है। कल इसी समय 82 के लक्ष्य को छुआ था, जो इस सीजन का बेस्ट चेसिंग है। आरडी के सामने बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले फैम टीम ने। खेल की शुरुआत पहले ओवर के लिए माइक्रोफोन पे चॉकलेट बॉय कमेंटेटर ओमकार शेट्टी। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भावे सर आणि बाबूशा। धनेश 11 कुकसे, आपण पहिल्या मॅच मध्ये म्हणालो की किंग इज बॅक आणि आता त्या टीमच्या अगेन्स्ट एक दमदार बॅटिंग करून टीम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए यांनी एक मोठं टार्गेट सेट केलंय। क्या लगता है ओमकार? मुझे तो लगता है ये मैच आखिरी ओवर नहीं बल्कि आखिरी गेंद तक जाएगा। या मॅच मध्ये ना यंगस्टरचा रोल फार मोठा असेल आणि त्या सोबतीनं कुमार गुण, कारण तो एक सेन्सिबल बॅट्समन आहे। मग या मॅच मध्ये ना तुमच्याकडे वेळ फार कमी आहे। मग ते कॅप बॅटिंग केली पहिल्या इनिंग मध्ये, फलंदाजी करताना सुरुवात करून दिली ती म्हणजेच करणच्या एका चौकारानं, त्याचबरोबरीनं ऋतिकचे 2 षटकार 1 चौकार आणि शेवट गोड केला सूरज पाटील आणि त्याला साथ देत असताना फलंदाज सागर कारभारी या खेळाडूंना एक मोठं टार्गेट सेट झालाय। 82 36 चेंडू करायचे 82 रन आणि जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून जे आमचे लाडके प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडलेत त्या सगळ्यांचंच मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे। धनेश, प्लीज सेंडिंग युअर ओपनर्स। सलामीची जोडी मैदानावरती इंटर होत असताना धनेश 11 कुकसे संघाची कुमार गुण आणि त्याच्या सोबतीनं मॅन फ्रॉम भावाळे, मागच्या सामन्याचा धनेश 11 कुकसेचा भिवंडी क्रिकेट मधला एक उगवता सितारा यंग रायझिंग स्टार सूरज केने। बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायचं कोणत्या बॉलरचा वापर इथनं केला जाईल। मॅच फार मोठी आहे कारण लक्ष्य 6 षटकांमध्ये तब्बल 82 पार करायचं आहे आणि धनेश 11 कुकसे त्यांची टॅगलाईन नेहमीच राहिली आहे क्रिकेटच्या मैदानावरती, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। तर हा खेळ धनेश 11 कुकसे ज्यांना मोठं डाव खेळणं नेहमी आवडतं, हा मोठा डाव सलमान धनेश टीम खेळेल का हा क्वेश्चन मार्क आहे। त्याची उत्तर येणारे 36 बॉल आपल्याला देतील आणि पाहायचं तर 36 बॉल मध्ये या 82 धावेचा लक्ष्याचा पल्ला पार केला जाईल का। देखिए, इस तरह के लक्ष्य जब भी धनेश ने छुए उसमें जयेश पाटिल, भावेश पवार और महेंद्र मागे का बहुत बड़ा रोल रहा है। ओपन हमेशा अच्छा किया है कुमार गुण ने। मापोली क्रिकेट धमाका को हम भूल नहीं सकते, बिलाल शेख का अर्धशतक, लेकिन पलटवार फिर जयेश पाटिल का, पलटवार भावेश पवार का और गोल्डन 6 लगाया था हरीश पाटिल को उस वक्त महेंद्र मागे ने। 81 केलेत, फार चांगलं क्रिकेट सुरेश इंटरप्राइजेस पायनं खेळलाय। बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार झालाय गोलंदाज उमेश तरे। दुनिया की हर चीज भावेसर ठोकर लगने से टूट जाती है, भावेसर एक कामयाबी ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर मिलती है। ती मेल का धनेश 11 कुकसेला, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल उमेश तरे के 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे, बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं और की गेंदबाज हैं। देखिए सुरेश पाए एक ऐसी टीम है जो इतनी आसानी से तो पहले मैच नहीं जाने देंगी और लग ये रहा है कि ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट रहेगा। गेम इज ऑन, सामना सुरू होत आहे। टेनिस बॉल क्रिकेट ज्या खेळानं तुम्हाला सगळ्यांना वेळ लावलाय, भारताच्या बाहेर देखील टेनिस बॉल क्रिकेटपटू खेळताना दिसले। क्रिकॉन कपच्या माध्यमातून आपण मोठी क्रिकेट स्पर्धा पाहिली, त्याचबरोबरीने नुकतंच आपण खाडी चषक नॅशनल ब्लास्ट पाहिलं, 20 लाख आणि 10 लाख। आणि ई टुर्नामेंट पहिलाच बॉल अपील झालाय कॉन्फिडंट लेवल हाय, उमेश तरेला विश्वास आणि अंपायर्स कडे अपील। बहुत जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड की बहुत जोरदार अपील, नीची गेंद रही थी वहां पर आणि चेंडूनी बॅटचा स्पर्श झालाय का, उमेश तरेला फार विश्वास होता। म्हणून क्रिकेट मधला नियम अभाव आहे सर, ज्यावेळी बॉल रिलीज होतो कॉमेंटेटरला शांत राहावंच लागतं आणि इकडे देखील अगदी तेच चित्र तर झालंच, मात्र अंपायर वरती या अपीलचा कोणताही विश्वास नाहीये। क्या आशीर्वाद किए उमेश तरे ने। पहिला बॉल दबाव टाकण्याचा कदाचित प्रयत्न होता, उमेश तरे तयार। रणवीर रिदम मध्ये थोडीशी मिस्टेक, स्वतःला थांबवलं। पहिल्या बॉल पासून ना उत्साह आणि जोश, टीम सुरेश एंटरप्राइजेस पाय महापौर चषकाची सिटी इमर्जन्सी विजेता टीम आहे आणि इथे मैदानावरती सिटी क्रिकेट मधली एक दादा टीम तनिष कुकसे। उमेश तयार, फुल्लर लेन बॅटची आतली कडा, एक सिंगल जरूर मिळेल आणि सुरुवात अतिशय लाजवाब टीम पायनं केली आहे। Yes, I think this is the great start from Umesh Tare. Different quality bowling, and I think Suresh Pai in full charge here. All body language plays showing excellent and positive. स्ट्रायकर एंडला आलाय कुमार गुण, एक मोठ्या मॅचचा मोठा खेळाडू आहे। 6 ओव्हर 82 रनचं टार्गेट आणि उमेश तरेनं सुरुवात अफलातून केली आहे। अल्पेश गायकवाडांचं आगमन झालं, अपंगत्वावरती मात करून स्वतःची एक वेगळी ओळख सध्या त्यानं तयार केली आहे। ऑन साइडला आडवा बॅटनं लॉफ्ट करायचं होतं, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क इथे नाही आहे। चेंडू जातोय इथनं डॉट, 3 बॉल मध्ये आली आहे फक्त एक सिंगल। इट इज नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू आर, इट इज इम्पॉर्टंट हाऊ बिग यू प्ले। तुम्ही किती मोठे आहात त्यापेक्षा तुम्ही किती चांगलं खेळताय ते इथे पाहायचं। ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग। इस मर्तबा हुक कर दिया है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। कुमार गुण, कुमार अगदी आता कुमार गुण ने देखील सांगितलं गोलंदाजाला ये गेंद मैदान से बाहर जाके ढूंढ, उसी का नाम है भिनार का कुमार गुण। पंख्यावरती ठेव विश्वास, घे भरारी जोगात, कळू दे त्या वेड्या विश्वाला तुझी खरी अवकात। आणि हा फटका ना क्वालिटी सिद्ध करतोय कुमार गुंड या नावाची। I think could be a cut to cut match because Umesh Tare bowled excellent so far. He considered only 5 runs. वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, 6 बॉल मध्ये 6 विकेट त्याच्या नावावरती आणि त्याला देखील सांगावं लागेल यू क्रिएट हार्ड वर्क गॉट अ सक्सेस बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हाफ ट्रॅकर बॅटची लीडिंग एज, विकेट विकेट मिळाली आहे उमेश तरेला। फलंदाज बाद कुमार गुण, बॅक टू द डगआउट। पहिला धक्का धनेश 11 कुकसे संघाला, फलंदाजीतनं होतील बाद, करावा लागतोय परतीचा प्रवास। देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं उमेश तरे, पिछली 5 गेंदों पर 5 रन दिए, 1 विकेट लिया। ये देखिए किस तरह से मिस्क्यू हुक शॉट था, शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी, ये देखिए जश्न। एक बात तो कहूंगा, इस मैच का जितना भी क्लाइमैक्स है वो डिपेंड रहेगा भावेश पवार और महेंद्र मागे और जयेश पाटिल की बल्लेबाजी पर। देखिए जयेश पाटिल बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, अब देखना है उनको वन डाउन इसलिए भेजा है। 1 या 2 इनिंग आपने रन नहीं बनाए तो आपके क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज द ग्रेट प्लेयर वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल, लेकिन अब उनके भी क्लास की परीक्षा है क्योंकि उनके टीम को अब उनके रनों की जरूरत है। लेकिन यहाँ मैं सराहना करूंगा सुरेश इंटरप्राइजेस की, उमेश तरे ने कमर कस लिए, आर या पार, करण कदम उनके पास बार बार जा रहे। बॉल तैयार, उमेश तरे
विकेट मिळाल्यानंतर मैदानावरती दाखल झाला भिवंडी क्रिकेटच्या आख्यायिकेचा सम्राट नाव जयेश पाटील. सध्या बॅड पॅचअप सुरू आहे, सध्या खराब फॉर्म सुरू आहे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मध्ये आहे ना सचिन सेहवाग युवराज मोहम्मद के बॅड पॅचअप नाही, हा कुणाला सोडलं नाही. फक्त एक मात्र नाव होतं भावेसर सर डॉन ब्रॅडमन, त्यांना त्याच्या आयुष्यामध्ये कधीच बॅड पॅचअप फेस केला नाही. सध्या जेपी ला या खराब फॉर्म मधनं सांगायचं फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट. नहीं, मैं नहीं मानता कि उनका फॉर्म टेम्पररी है, क्योंकि पहला इस सीजन का वो कप खेल रहे हैं, पहले मैच में अनसक्सेस गए, नो डाउट इट ऑल, लेकिन इतने जल्दी तो नहीं मैं कहूँगा. इज द क्लास प्लेयर. लेकिन यह उमेश तरे की सराहना, 1 ओवर 5 रन 1 विकेट. महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन. सैफ शेख पहिल्या षटकामध्ये रन्स फारशाला नाही आहेत, अगदी जी सरासरी हवी होती त्याच्या फार मागे पडली आहे धनेश 11 कुकचे टीम. आणि जेपी बद्दल आपण त्याच्या फॉर्मची चर्चा का केली, कारण भारतासाठी विराट कोहली बॅक टू बॅक 2 मॅच मध्ये 100 करतो, नेक्स्ट मॅच मध्ये त्यांना 10 ते 12 केल्या, तर प्रत्येकाला असं वाटतं की विराटचा खराब फॉर्म सुरू आहे, कारण जेपी कडनं अपेक्षा तेवढ्या मोठ्या असतात या धनेश 11 कुकचे टीमला आणि त्यांच्या समर्थकांना. कारण बॅकबोन आहे या टीमचा. बॉलिंग ट्रॅक मध्ये सैफ आलाय, फिरकीचा वापर केला. सैफ शेख लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विच हिट किया हवा में, शकर की गोली, आउट बैट्समैन. आप कहना होगा कि पिछले मैच में 35 बनाने वाले इस मैच में 1 बना के लौटते हुए. सैफ शेख पहले मैच में नहीं थे और पिछले सीजन में आपने देखा कि 2 गेंदबाज बहुत ही सक्सेस रहे थे, एक दर्शन पाटिल और दूसरे सैफ शेख. मागच्या मॅच मध्ये देखील सैफ शेखनं फार चांगली बॉलिंग केली आहे भावेसर. 2 ओव्हरचा स्पेल टाकत असताना अगदी इकॉनॉमिकल षटकं त्यानं टाकली आहेत. मग या मॅच मध्ये सूरज केने स्वस्तात बाद झालाय आणि याचंच नाव क्रिकेट आहे, कधी हिरो तर कधी झिरो. आणि फलंदाजीसाठी विवेक शेलार. पहले मैच में भी उन्होंने 4 विकेटें ली थी, लेकिन देखिए प्लान क्या था. प्लान ये था कि सर्कल में बैकवर्ड पॉइंट को रखा जाए, बैट्समैन को रिवर्स शॉट खेलने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन स्ट्राइक जयेश पाटिल के पास आया है तो डीप पॉइंट रखा गया. सूरज पाटिल, करण कदम, ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत ही झिंझारू है. उमेश तरे, कपिल केने, बॉलिंग बहुत अच्छी है. कपिल केने बाकी है. चांगलं बॉलिंग युनिट आहे, त्यामुळे जड जाणार आहे आणि टार्गेट देखील फार मोठं तर लावलंय आणि आज मोठा उलटफेर करायचा आहे सुरेश एंटरप्राइजेस पाहायला. टीमचा कॅप्टन आला भिवंडीचा बॅन स्टोक विवेक शेलार. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सैफ शेख, ओ स्वीप किया, कंट्रोल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, थोड़ा मिसफील्ड हुआ है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. देखिए विवेक शेलार ऊपर क्यों आए, यही सोना देवी टीम थी, यही सैफ शेख थे जिन्होंने आधी टीम को उन्होंने आउट किया था, लेकिन बाद में सैफ शेख के सामने विवेक शेलार ने ही मोर्चा खोला था. 2 से खाता खुला. जयेश का कुल स्कोर 7 रन 2 विकेट. फिर से स्वीप किया है, फिर से कंट्रोल शॉट है, वही खिलाड़ी मिसफील्ड, 1-2 का 4 रन. उमेश तरे लगातार गलतियां कर रहे हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा इस वक्त 11 रन. बाबू शाह आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है. 11 रन 2 विकेट. इस ओवर के बाद हम हमारे साथी कमेंटेटर बाबू शाह का सत्कार करेंगे. सैफ शेख जयेश पाटिल के लिए 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 झाड़ू स्ट्रोक खेल चुके हैं. जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ सुरेश पाए
और धनेश कुकसे के बीच में। सैफ समय में कॉपरेट करे सुरेश पाए। अगदी जो वेळ तुम्हाला दिलाय त्या वेळामध्ये तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं आहे. महिंद्रा के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन। ओ घूमी गेंद, घूमी, कुछ भी समझ में नहीं आया। टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस, क्या गेंदबाजी हो रही है. यष्टी रक्षकाचं कौतुक करेल. सैफ शेख यांना जवळजवळ चेंडूला 1 ते 1.25 मीटर स्विंग करतोय आणि अगेन द स्विंग क्लोज कीप अगदी टफ चॅलेंज असतं. सैफ शेख फुल टॉस गेंद, स्विच इट, गेंद मैदान के बाहर, नो बॉल, 6 रन. हा बीमर आहे आणि त्याच्यावरती ठोकला षटकार आणि आता करतो पलटवार भिवंडीचा वंडर बॉय ओवळीचा सितारा जयेश पाटील आणि सांगून दिला या षटकारानं धनशीलन कुकसेनं सगळी बंदी चालेल भावे सर, रन बंदी चालणार नाही. आणि या षटकारानं आता प्रत्येक जण इथे म्हणतोय जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. अरे ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. फ्रीचा बॉल आणि स्ट्राइकर इनला आहे जेपी. देखिए मैच शुरू कर दिया इस बीमर ने. मैंने पहले ही कहा था कि पहले इनिंग में वो 0 पे आउट हुए, पहला मैच खेल रहे थे BC4 फॉर्मेट में, उनका क्लास वही है. सैफ शेख जयेश पाटिल के लिए स्लॉक स्वीप, गैप में गेंद निकल रही है, 4 रन. व्हॉट अ शॉट आणि हे फटके आहे ना फक्त जयेश पाटील खेळू शकतो. म्हणून तो मैदानावरती याला भावे सर त्यावेळी आपण म्हणालो की भिवंडी क्रिकेटच्या सध्याच्या घडीचा या जनरेशनच्या आख्यायिकेचा एक अद्वितीय सम्राट दाखल होतोय. आणि तो का तर त्याची प्रचिती, त्याची बॅट सध्या बोलतीये. मैंने कहा था कि जयेश पाटिल, महेंद्र मागे, हालांकि सभी को खेलना होगा, और भावेश पवार, ये तीनों बैट्समैन ऐसे जो मैच का पासा पलट सकते. विवेक शेलार को तो भेजा है तुरुक के लिए, चला तो चला, चला तो मटका नहीं तो झटका. हालांकि ऑलराउंडर है PTC में वो. आणि ज्यावेळी तो खालिंगसाठी खेळतो फार दमदार बॅटिंग देखील करतो. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, फिर से पीछे खिलाड़ी देखते रह गए. गेंद देखना है 4 या 6 रन. जयेश पाटिल ऑन फायर. आणि जयेश साठी एक पारितोषिक देखील आलाय. जर त्यांना अर्धशतक या मॅच मध्ये ठोकलं तर युवराज भोईर यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक JP ला दिलं जाईल. 2 ओवर की समाप्ति पे 28 रन आए. जो मिसफील्ड हुआ था वो महंगा पड़ता हुआ, और जयेश पाटिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 पे. आज हमारे बीच हमारे कमेंटेटर दोन षटकांचा खेळ झाला. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 28. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या रन फक्त 5 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 23. बनवायच्या त्या मॅच मध्ये धावा 82 आणि अजूनही फार मोठा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. एक चांगलं कमबॅक करणारं षटक हवंय सुरेश इंटरप्राइजेस पाये क्रिकेट टीमला. आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आता इन्व्हाइट केलंय कपिल केनेला. याचं कारण का तर भावेश सेना बाकी आहे आणि हा गोरसीचा खेळाडू आहे, त्यामुळे याचं षटक जर आधी पूर्ण झालं तर नंतरची डोकेदुखी कदाचित थोडीशी कमी होईल. चांगली रणनीती आहे सुरेश इंटरप्राइजेस पायाच्या कॅप्टन जी. भिवंडी के लसित मलिंगा. दूसरे ओवर में विवेक शिलार ने 23 दिए थे, दूसरे ओवर में 23 दे डाले सैफ शेख ने. कपिल के ने साइड आर्म गेंदबाज हैं लसित मलिंगा भिवंडी के. तर एक पारितोषिक आलाय छोट्या दादा पाटील अर्थातच दिवा ग्रुप आणि मॅक्स भाई यांच्याकडनं. प्रत्येकी षटकाराला विवेक शेलासाठी 1000 रुपयाचं. तर आज आपल्या दिवस जे अंतिम टर्न मध्ये येतील तर या षटकासाठी आपण इन्व्हाइट करू कॉम्बॉक्स मध्ये शेर शायराना अंदाज देवीच्या पाड्याचे MRDC चे बाबू शहाना. बहुत बढ़िया गेंद. देखिए विवेक शेलार इस मैच में गेंदबाजी में बहुत ही महंगे साबित हुए. 2 ओवर में 38 रन दे डाले. देखना है कुछ पाते या नहीं. फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया, पीछे खिलाड़ी, विवेक शेलार आउट. तो विवेक शेलार के लिए ये मैच अच्छा नहीं रहा. पहले खर्चीली गेंदबाजी, उसके बाद 0 पे आउट. मेरे साथ बाबूशाह जुड़ चुके हैं. बाबूशाह क्या कहेंगे
ये मैच पल पल करवट ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कहते हैं ना, ये मैच कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन, धक 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 धक। और यही तो टेनिस क्रिकेट की खासियत है, जो कोयला को कोहिनूर बना देता है। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सिद्दीक सर कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। काफी हसीनाओं के नाम आपके मुंह पे आ रहे। बहुत धोखा खाया हूं सिद्दीक सर। हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ कि मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू जबान है जो हम बोलते हैं। और हसीनों से कोई तिजारत ना करना, ये कम नापते हैं, ये कम तोलते हैं। क्या बात है सिद्दीक सर, लेकिन यहाँ पर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। नए बैट्समैन ड्रॉप सीन के हीरो, उनको पता है मैच यहाँ से सरक सकता है। भावेश पवार आए हैं, ये जोड़ी अब सबसे अच्छी जोड़ी है। बढ़िया बढ़िया जोड़ी रहेगा। देखिए पर कहते ना, कहीं घुंघरू मचलता है, कहीं आंसू निकलता है। इन्हीं का नाम सर भावेश पवार है, जिनकी बल्लेबाजी से अच्छे अच्छे गेंदबाज का पसीना छूटता है। ब्यूटी ब्यूटी, क्या बॉलिंग करें कपिल के ने। ऐसा लग रहा है ये मुकाबला थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, हार मानने को तैयार नहीं है कपिल के ने। देखिए बढ़िया गेंदबाजी। कहते ना, हमारी हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, हम ये मुकाबला इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे, और ये होना चाहिए। देखिए जब दो टॉप टीम खेलते हैं ना, तो मुकाबला ऐसा देखने को मिलता है। देखिए इस साल का जो BC4 का फॉर्मेट है, उसमें जो टीमें हैं, हम कह नहीं सकते कि कौन किसको हराएगा। एक बात है कि माना बहुत चैंपियन टीम धनेश रह चुकी है, लेकिन सुरेश पाए वन ऑफ द ग्रेट टीम, बैलेंस टीम है। बॉलिंग अटैक देखिए कितना अच्छा है उनके पास। सिद्दीक सर देखिए, एक तरफ भावेश पवार, दूसरी तरफ कपिल के ने। क्या बात है, घर का जंग मैदान पर। बहुत बढ़िया, यही तो टेनिस का दस्तूर है भाई। तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं। बड़ा दिलचस्प रहेगा ये ओवर। कपिल के ने राइट आर्म राउंड स्टंप, भावेश पवार को ऊपर लगी। ओ सिद्दीक सर, मैं तो कहूंगा लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। ये कैच कैप्टन ने छोड़ा है, क्या ये मैच छूटा है? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बनते हैं, कभी कभी जीरो। ये कैच क्या मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा? बिल्कुल, इसलिए तो कहा लैला की शादी में लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। कहीं ये कैच छूटना या मैच छूटा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर कपिल के ने किस्मत का साथ नहीं, कपिल के ने ऊंट पे बैठ गई और उनको चूंटी काट लिए। बिल्कुल, सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दे तो बेहतर है, नहीं तो बाद में बहुत डसता है। 23 पे बल्लेबाजी करें जयेश पाटिल, समय में कॉपरेट करें, एक मैच और खिलाना है हमें। कपिल के ने लोग भी टकटकी बांधे देख रहे हैं जयेश पाटिल के लिए। स्विच हिट, कमाल का शॉट, 6 रन, वंडरफुल स्ट्रोक फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ भिवंडी। में खुमार जरूर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर, देखिए यहाँ पर कपिल के नहीं, पूरी खिलाड़ियों के बीच में चर्चा चल रहा है। और देखिए वंडर बॉय क्यों कहा जाता है जयेश पाटिल। देखिए यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी, देखिए सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ी उंगली कर दी। यहाँ पर टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से। ये क्या हो रहा है? पहले ओवर में 4 बनाए थे, धनेश ने 5 बनाए, दूसरे में 23 आए थे, यहाँ भी 23 आए, तीसरे में 8 आए थे, यहाँ भी 8 आए। चलिए यहाँ पर तू शेर तो मैं बब्बर शेर, ऐसा कहानी चल रहा है यहाँ पर सिद्दीक सर। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। तो जोर दिखाए यहाँ पर, गेंदबाज की भी तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2 धाकड़ बल्लेबाज हैं, उसके बावजूद भी देखिए छक्का खा रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कहेंगे ना, वो जो कैच छूटा। देखिए शतरंज की बाजी के मोड़े को चेंज किया, उमेश तरे को बुलाया गया है, मरता क्या ना करता, क्योंकि सैफ शेख स्पिन गेंदबाज हैं और भावेश पवार के आने के बाद उनको हटाया है। 3 ओवर में कितने चाहिए साहिबा? 3 में बने 36 और 3 में चाहिए 46।
तो चलिए यहाँ पर चलेंगे, 46 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना, जंगल में शेर से और क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना। लेकिन गेंदबाजी के लिए देखिए, गेंदबाज यहाँ पर उमेश तरे तैयार गेंदबाजी के लिए। और ये चलिए भावेश पवार का बल्ला चलता हुआ यहाँ पर AK-47 6 रन। पवार ने जूजी ऑफर ली थी, उछाल दिया गेंद को, तान दिया आसमान में, दूर कई लॉन्गॉन में, दूर गगन की छाव में 6 रन। ये भावेश पवार है। इनको जीवन दान देना कितना महंगा पड़ा है, वही बात हो रही होंगी पीछे। इधर देखिए, 6 मारे, 3 खिलाड़ी बॉलर के पास आए, 3 खिलाड़ी विकेट कीपर के पास। तो चलिए, क्या छोड़े, देखिए जिस समय क्या छोड़े, ऐसा लगता है कि गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। क्योंकि हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए आना है। हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर सिद्दीक सर, खराब शॉट का चटनी बनाकर खा लीजिए। अच्छा शॉट सिलेक्शन का। BC4 के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। बिल्कुल सर, अल्ताफ बाली सर कहा जाए तो टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ी नाम। और ये देखें यहाँ पर, इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का दागे बल्लेबाज का जुनून था, और इस गेंद के ऊपर देखिए डॉट गेंद निकलता हुआ, गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। देखते हैं कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा। सबके लाडले, सबके प्यारे अल्ताफ बाली सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, तस्वीर रखिए। और बढ़िया मैच देखिए यहाँ पर भावेश पवार का क्या छोड़ना, थोड़ा सा कहेंगे तबाही को दावत देना। लेकिन इस क्रिकेट में दोस्तों ऐसा होता रहता है, कहीं गलतियों के बाद फिर वापसी होता है। क्या यहाँ पर रोक पाएंगे गेंदबाज बल्लेबाज भावेश पवार को? बढ़िया शॉट सिलेक्शन देखिए उनका कमाल का रहता है, और गेंदबाजी के लिए तैयार एक बार। और इस बार देखिए मौका दिया है, मौका मौका मौका। और उमेश तरे ने बता दिया, उजाला मिल जाए हमारी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। बाबू शाह शुक्रिया। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि BC4 का क्रिकेट सारे देश में वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन है। आगे से जो भी टीमें खेल रही है BC4 फॉर्मेट में, उनको अपने तमाम खिलाड़ियों के फोटोज BC4 कमेटी तक पहुंचाना है। ये BC4 चेयरपर्सन और उनके सभी जो मेंबर्स है, चाहे सुभाष ठाकरे हो कोई भी, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। अथवा आपको किसी टूर्नामेंट में खेलने नहीं दिया जाएगा, आपको अपने तमाम खिलाड़ियों के फोटोज BC4 कमेटी तक पहुंचाना है। तो चलिए देखिए, टेनिस क्रिकेट भी आगे बहुत जा चुका है, हर चीज को नहीं। एक बात है बाबू शाह के BC4 के आने से भिवंडी का क्रिकेट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन हुआ है। इसीलिए तो BC4 का जो फॉर्मेट है, अमोल पाटिल भी है हमारे बीच में, BC4 का जो फॉर्मेट है वो सारे देश में ये सिटी क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर, इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा हर टीम खिलाड़ी को। और ये चलिए भाई, चेस पाटिल को देखिए पर डॉट गेंद निकलता हुआ, और क्या कमाल के गेंदबाजी देखिए, अपनी टीम के लिए पूरे जियो जान डालता हुआ। सब ट्रम्प कार्ड भेजे हैं, अब महेंद्र मागे आए हैं आगे। देखिए धनेश भी जितने ट्रम्प कार्ड है सब यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल से करना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए मुश्किल हालत है गेंद और रनों के बीच में। देखिए 14 गेंद की जरूरत है, और चेस पाटिल देखिए हार मानने को नहीं है तैयार। झलक 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 निकला था 6 रन। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। दम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश पाटिल, खींच के मारा था, पुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन। 13 गेंद देखिए 34 की जरूरत है। सिद्दीक सर जयेश पाटिल बता रहे हैं, भाई कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी गुरु मैदान पर अभी तक, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की, लड़ने की, लड़ने की। तो देखते हैं यहाँ पर 35 रन बना चुके हैं जयेश पाटिल। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो, हल्की हाथों से यहाँ पर गेंद को खेला, और यहाँ पर देखिए करना चाहिए था कोशिश है
भला एक रन चला जाते, मैं कहूँ चौवा भी जाता ना, कुछ नहीं खोता, थोड़ा सा खोता, लेकिन अगर ये विकेट मिल जाता तो फिर ये मैच आपको मिल जाता। 4 ओवर में रन बने 48, 2 ओवर में डू और डाई की सिचुएशन। इस वक्त धनेश कुकसे के सामने कितने रन चाहिए साहिबा 2 ओवर में? तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे 12 गेंद 34 की जरूरत है। हमारे बीच BC4 के सुभाष ठाकरे बूम बूम है। आइए हम सुभाष ठाकरे जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। रोहन भुईर रोहन पाटिल इस स्पर्धा के वन मैन शो उर्फ बंटा सेठ, ये उन्हें शॉल और पुष्प को दिया जा रहा है। BC4 के वो सदस्य भी हैं। 2 ओवर में 34 रन, आर या पार। लेकिन धनेश कुकसे को पहले ही टूर्नामेंट में चुनौती इतनी भारी मिली है कि जिसको झेल पाना मुश्किल है। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। जयेश पाटिल व्हाट अ इनिंग, 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर के बाद हम टॉस लेंगे, ये ओवर सब समाप्त होगा। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे यहाँ पर साहिब शेख। तो चलिए बात करेंगे सिद्दीक सर। देखिए अभी 12 गेंद 34 की जरूरत है। कहीं ना कहीं सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है और मैच भी जिंदा है। साहब की गेंद घूमी लेकिन वाइड, टर्न हो गया। युवराज भोईर साहब ने ऐलान किया कि जयेश 50 लगाते हैं तो 2000 रुपए। साहिब शेख मागे को बचने की कोशिश, फिर वाइड। 12-32 का इक्वेशन, 50 रन पूरे हुए हैं। एक बात है कि 50 लगाते हैं तो लगभग मैच के भी करीब जाएंगे, लेकिन जयेश पाटिल अर्धशतक के लिए तो कभी भी नहीं खेले, मैंने कभी नहीं देखा है। अगर लगाया अभी तो टीम की जीत के लिए, लेकिन ये मैच अभी भी बराबर है, 50-50। साहिब शेख उछाल दिया है, मागे ने दूर कही, मिड विकेट पर 6 रन। के चाहने वाले कितने थे, लेकिन महेंद्र मागे के चाहने वाले बहुत हैं। सिक्सर से खाता खोलते हुए कुल स्कोर 56, अब तक 56। कितनी गेंदे कितने रन? 11 गेंदे 26 रन। कभी कभी क्या होता है मालूम है, आप बहुत इंतजार करते हैं ना तो आपकी प्लानिंग भी उस मुताबिक रहती है। साहिब शेख पहले मैच में 4 विकेटें ली, इस मैच में 1 विकेट ले चुके हैं। सामना करेंगे महेंद्र मागे। मागे को आगे भेजा है। जॉय कुमार के कैप्टन और हमजा के कैप्टन तुरंत ही टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करें। जॉय के आ चुके हैं, हमजा के कैप्टन। साहिब शेख लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, मागे को कंट्रोल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है। थोड़ा फंबल जरूर किया लेकिन 1 रन, 10 गेंदे 25 रन। देखिए ये चेसिंग का जो रिकॉर्ड है इस सीजन में, वो कल बंटी स्पोर्ट्स के नाम गया है और तालुका क्रिकेट का हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड बी इंडियन के नाम है। धनेश कुकसे के सामने बी इंडियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल 2018। साहिब शेख सामना करेंगे जयेश पाटिल। 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 सिक्सर लगा चुके हैं। साहिब जयेश के लिए स्विच हिट किया है, कोई खिलाड़ी नहीं, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंपायर ने 6 का इशारा किया। देखना वॉलंटियर्स, यस बी का पार्टनर 4 रन।
आपको आराम से डिसीजन देना है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से लंबी बाउंड्री है, निश्चित रूप से कभी कभी होता है, निश्चित रूप से चौका आता हुआ यहाँ पर 39 पे बल्लेबाजी करें जयेश पाटिल। कुल स्कोर 61 रन। कितने चाहिए साहिबा यहां से? 21 रन। गेंदे बची है 9। धनेश कुकसे जिस खेल के लिए मशहूर है वहीं करती हुई यहां पर युवराज भोईर ने कहा है कि अर्धशतक जमाते तो 2000। स्वीप किया, पीछे खिलाड़ी, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। बात है जयेश पाटिल इस शॉट के लिए सिग्नेचर करके दे सकते हैं, सिग्नेचर स्ट्रोक। कौन भूल सकता है उस बारी को जो महापौर चषक के फाइनल में खेली थी। कुल स्कोर 67, 8-15। जयेश पाटिल कितने पे? 45 रन। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी प्लेड अ वंडरफुल इनिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। जयेश पाटिल, महेंद्र मागे और भावेश पवार। देखिए पिछले ओवर में कपिल केने ने 8 रन दिए, उनको नहीं बुलाया और सैफ शेख को लगाया, जबकि सैफ शेख 23 दे चुके हैं। इसमें कितने दिए? इस मर्तबा नीची बैकलिप का इस्तेमाल, 1 रन। अब तक 20 रन दिए तो महंगा बॉलिंग स्पेल सैफ शेख के नाम जाता हुआ इस सीजन का। देखिए एनालाइज जो कैप्टन का था वो इतना अच्छा नहीं था। सबसे महंगी गेंदबाजी सैफ ने की अब तक इस सीजन में। 2 ओवर में अब तक कितने दे चुके हैं? 1.5 और 43। कल हिमांशु ने 39 दी। सैफ शेख, महेंद्र मागे के लिए, शायद सैफ शेख को लगाया गया था कि मागे के लिए, लेकिन उन पर वार कर दिया जयेश पाटिल ने। 46 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत कड़क ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, दूसरे की कॉल। ओ रन के लिए जयेश पाटिल हिरन बन गए। वैसे भी विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ते हैं। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है 70। 1 ओवर और 6-12 का इक्वेशन। मैच के 7-12 अभी भी फंसे हैं। जयेश पाटिल 46 पर। अगले टॉस के लिए हम सिर्फ टॉस करेंगे, ओपिनियन नहीं लेंगे। आइए सूरज भोईर के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं, जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में गावदेवी चषक आपको एक अद्भुत तोहफा दिया था। कोई ओपिनियन नहीं होगा, सिर्फ टॉस करेंगे क्योंकि 6-12 का इक्वेशन है, खेल की शुरुआत करना है। छह 12। टॉस को जीता है करेश ने। फैसला क्या है? बैटिंग करेंगे। इस ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से 6 गेंद 12 की जरूरत है। 46 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त जयेश पाटिल। सभी की नजरें क्या जयेश पाटिल अर्धशतक लगा के धनेश को जिताएंगे या फिर करण कदम
इनको 2 कदम पीछे भेज देंगे। ये तो- करण कदम भी है ना, इनके हिस्से में गर्म पानी का ओर ही आता है। तो चलिए 6 गेंद अभी भी बात करेंगे, 12 रनों की जरूरत है। दोस्तों ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। टीवी ऑफ मत कर गुरु, ये टेनिस क्रिकेट है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। एक आध 2 गेंद अच्छा गेंद बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन जयेश पाटिल ने क्या कमाल के बल्लेबाजी। घोड़ाटकर प्लीज, एक मैच और होना है प्लीज। जितनी भी इनकी तारीफ किया जाए उतना ही कम। कमाल के बल्लेबाजी यहाँ पर इरादा ठान लिए थे। 46 रनों की देखिए अभी तक इनिंग्स खेलते हुए, लेकिन इस गेंदबाजी के लिए तैयार देखिए यहाँ पर से करण कदम। क्या बल्लेबाजी में तो जलवा नहीं। ओहो, ये क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती यहां पर हो गई। 1+4 5 रन पूरी पंजा। बिल्कुल अब साल भर नहीं भूल सकते। बिल्कुल। मेयर कप 2003 में इसी तरह फाइनल मुकाबला था। फाइनल ओवर में दीपक मडवी ने वाइड गेंद फेंकी, शिवाजी के हाथ से मेयर कप छूट गया। बिल्कुल खराब गेंद देखिए और उसके साथ चौड़ा यानी खुल पंजा देखिए, और किस्मत भी देखिए बहादुरों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर स्क्वायर लेग देखिए बात करेंगे, थोड़ा डीप रखा गया है और तब तक देखिए बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर। देखिए पहली गेंद के पर दबाव था बल्लेबाज को, चौके या छक्का आना जरूरी था, लेकिन एक्स्ट्रा रनों से यहाँ पर देखिए 5 रन आया और उसके बाद 2 रन यहां से आता हुआ। कुल बात करेंगे तो 7 रन। अभी देखिए 5 रनों की जरूरत है। आने वाले गेंद की बात करेंगे तो 5 रनों की जरूरत है और आने वाली गेंद की बात करेंगे तो यहां से 5 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार और बढ़िया गेंद देखिए, 1 रन बड़ी आसानी के साथ आ रहा है। दूसरे के लिए क्या फिर से एक बार जाना चाहेंगे और यहां पर देखिए दूसरे के लिए ना करते रुक गए। अभी भी देखिए 4 की जरूरत है, 4 रनों की जरूरत है। मुकाबला बराबरी में जाता है तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा। क्या मैच देखिए अभी तक कैसा कसमाकस बनते जा रहा है। 4 गेंद जीत की बात करेंगे, 4 की जरूरत है। और 18 गेंदों में 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश पाटिल। 4 गेंदे और कितने रन? 4 रनों की जरूरत है। गेंद और रनों देखिए यहाँ पर 1-1 रनों से यहाँ पर टोटल आगे बढ़ रहा है। 1-1। चलिए युवराज भूर साहब देखिए उनकी तरफ से अगर जयेश ने अर्धशतक लगाए तो 2000, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 गेंद 4 की जरूरत है। ओहो, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर फिनिश, छक्का फिनिश कर दिया है फिनिशर ने। बीमर पे 6 कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक जयेश पाटिल। नर्वस 49, लेकिन क्या बल्लेबाजी की है। कांग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड ऑल टीम। हार्ड लक सुरेश पाए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल 49। बढ़िया इनिंग्स है जयेश पाटिल। देखिए कीमत कहते हैं ना, पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक